हेलो हेलो। जी सर, हार्ड फॉर्म में तो नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में है हमारे पास। तो भैया मैंने तो खुद आप लोगों को क्लास में दी थी कि अपना जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी तो फिर कैसे नहीं हार्ड फॉर्म में। सर वो ऑगडन रिचर्ड वाली पेयर वाले नोट्स वो हैं हमारे पास। नहीं नहीं, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। सर है नोट्स हमारे पास हार्ड फॉर्म में। हाँ जी। ओके, सो कम टू पेज नंबर 164। 164। Okay, did you people find? Why are you people so lazy in responding? सर यहाँ पे नहीं है, हमारे पास नहीं है हार्ड फॉर्म में। मैंने आप लोगों को 150। क्लास में दिए थे, आप लोगों को सर क्लास में ये दिए थे। जी हाँ। जी इसका सर, आप बोल रहे हैं ना तो हाँ जी। प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स वाले हैं, लेकिन ये 156 पेज तक है। अच्छा 156 पेज पे है। अच्छा मैंने आप 156 पेज ओके। नंबर तक है हमारे पास। अच्छा 156 पेज यानी आगे नहीं है। जी सर, आगे नहीं है। गॉट इट, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। ओके, फिर आप मैंने आप लोग को सेट किए थे उसमें चेक करें। जो मैंने आप लोगों को जो है वो कैम स्कैन से बना के किए थे ना सेंड, उसके अंदर मौजूद होंगे। उसमें है। उसमें है ना। चले जी, शुक्र है शुक्र है। हसनैन, आप ग्रुप में सेंड कर देंगे प्लीज। चलो जी स्नैन जल्दी करो। यस सर, आई हैव रिसीव्ड दैट। ओके, ग्रुप में ग्रुप है सब में, सबके पास है। यस फ्रॉम इवनिंग, इवनिंग वालों के पास भी है, इवनिंग वाले भी किसी को कर दें ताकि वो उनके पास में अगर नहीं है तो बहुत। अब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब जब ये कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव कौन होता है? आप तो जनरली आप कह देते हैं ना, इज वेरी कोऑपरेटिव, शी इज वेरी कोऑपरेटिव, शी इज नॉट कोऑपरेटिव। सर कोई तो जो जवाब दिया कोऑपरेट करता करें, है वही, मुझे सर जो समझ नहीं आती। कोऑपरेट करता है एक वही मिनट, कोऑपरेट ये एक करता मिनट, यहाँ पे एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स आर जो है वो देयर, सो व्हाई आर यू सिटिंग, you have a dumb, all of you have got जो है वो tongues in your mouths, सब मिल के काम and करना। and and I'm sure they function very well. At least just I am asking, matlab this is not for the sake of checking your knowledge or something like that. I am just trying to make you people a bit interactive. But you people have in fact taken the oath, yet you people are not going to be interactive at all, and you will remain as dumb as ever. So such type of acts in fact they demotivate the teachers as well. We are trying to motivate you people, but you people are trying best to demotivate us. So a bit cooperation from you people, that is also called the lack of cooperation in conversation. जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल भी इसी चीज से जो वो डील करता है, दैट व्हेन देयर इज कन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस between communicators or between different people, the participants, so they should try to cooperate in the sense they should try to facilitate each other in conversation.
For example, if someone asks you a question and you are not responding at all, it means you are not providing the information a person is asking for. So, are you cooperative in this sense? Of course, no. You are violating the cooperative principle. In the same manner, if someone asks you a question and you answer the question, but you answer it deliberately wrong, the answer is there, but the answer has been manipulated, the information has been manipulated. Of course, you are not cooperating, because the response is there, but it should also be correct. It should also be genuine. It should be based on reality. It should be true according to the best of your knowledge and information. Only then you are cooperating. But if you're trying to manipulate the information, if you're trying to mislead and misguide the person, the other person, your communication partner, so it means you are again violating the cooperative principle. So this is in fact cooperative principle, that we should try to facilitate each other. जो आपसे पूछा गया है वो बताएं, जितना पूछा गया है वो जो है वो बताएं, जो रिक्वायर्ड है वो आप बताएं, और जो सच है वो बताएं. यही कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं. And so far as the concept of cooperative principle is concerned, this is associated with the British philosopher Paul Grice. Rather, it can also be pronounced as Grice. The British philosopher Paul Grice, he argued for an intention-based, rather we can say, intention-based theory of meaning. Intention-based. And he is of the opinion that there are some certain principles or maxims that should be followed during the conversation, and the observance of these maxims, it can help both the communication partners to communicate effectively. So आप लोगों के पास जो मौजूद हैं हैंडआउट जो शेयर किए गए हैं वहां पे आए जरा. अब तो है आप दोनों के पास पेज नंबर 164. An underlying assumption in most conversational exchanges is that the participants are cooperating with each other. जब भी conversation होती है, conversation तभी it can take place and it can proceed when both the communication partners or all the communication partners, no matter how many are there, when they are cooperating. जहां पे भी हम देखते हैं कि कन्वर्सेशन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट सजेस्ट्स that they are cooperating each other, only then it is proceeding, otherwise it must have come to an end. तब तक तो खत्म हो चुकी होगी अगर उसके अंदर कॉपरेशन ना होती तो हम एस्यूम करते हैं ये. तो अब ये जो हमारा जो है वो जनरल असम्पशन है, ये जो प्रिंसिपल है, इसके साथ साथ 4 और एलिमेंट्स हैं जिनको मैक्सिम्स कहा जाता है. They were first described by the philosopher Paul Grice. उसने ये प्रिंसिपल दिया था कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, और उसी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के साथ उसने ऐड किए 4 एलिमेंट्स, 4 पॉइंट्स, 4 मैक्सिम्स. अब मैक्सिम यू नो क्या होता है? मैक्सिम क्या होता है? व्हाट इज मैक्सिम? सही मुहावरा जो प्रोवर्ब वगैरह होते हैं. प्रोवर्ब समथिंग ओके, समथिंग जी, कोई भी हमारा जो एक इस लिहाज से प्रिंसिपल है, कोई रूल है, something that is considered to be true, so all these are known as maxims. तो उसने जो एक जनरल पहले जो है वो प्रिंसिपल दिया जिसको उसने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कहा कि, और उसके बाद फिर उसने फर्दर इसके अंदर 4 एलिमेंट्स जो है वो ऐड किए, और ये भी इसी से जो है वो रिलेटेड है, और ये गोया जो है वो ये डिटेल बयान करते हैं कि हम कब जो है वो
सब कहेंगे कि कोऑपरेशन है हमारी कन्वर्सेशन में, अगर हमारे पास जो है ये 4 मैक्सिम्स को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। और अगर हम इनमें से किसी एक को भी जो वो फॉलो नहीं कर रहे तो हम कंप्लीटली जो है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को जो है वो नहीं। अब यहाँ पे आप टेबल में देखें कि ये 4 मैक्सिम्स हैं जिनको ग्राइशन मैक्सिम्स भी कह दिया जाता है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ पॉल ग्राइस। द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है, इसकी एक बिट डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। मेक योर कन्वर्सेशनल कंट्रीब्यूशन सच एज इज रिक्वायर्ड, कि आप कहीं पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप कहीं पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यू आर एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, तो आपका कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का एक एलिमेंट ये है, एक एस्पेक्ट ये है, आप उतना कंट्रीब्यूशन करें जितना रिक्वायर्ड है, जितना पूछा गया है उतना, जितना की जरूरी है उतना की जो है वो इंटरप्ट करें। डोंट ट्राई टू इंटरप्ट व्हेन यू आर नॉट नीडेड, व्हेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड, व्हेन यू आर अनवांटेड, सो डोंट ट्राई टू जंप इनटू द कन्वर्सेशन। अगर आप ऐसा करेंगे तो इट मींस आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं या उसको फ्लाउट कर रहे हैं। एट द स्टेज एट विच इट अकर्स, और एक प्रॉपर स्टेज पे आप जो है वो करें जहां पे आपकी जरूरत है, कि यहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहां पे बोलें, ये नहीं कि जहां पे आपको नहीं जरूरी वहां पे बोलें। ऑफ कोर्स अगेन यू आर नॉट कोऑपरेटिंग अगर आप गलत मौके पे बोलते हैं तो। बाय द एक्सेप्टेड पर्पस और डायरेक्शन ऑफ द टॉक एक्सचेंज इन विच यू आर इंगेज्ड, बाय द एक्सेप्टेड पर्पस एंड डायरेक्शन, और उसी तरह से उसी पर्पस के तहत आप बात करें, जिस मौजू पे बात हो रही है, जिस अंदाज में बात हो रही है, आप उसी किस्म का करें। तो आपका कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जनरल यही है, मेक योर कन्वर्सेशनल कंट्रीब्यूशन सच एज इज रिक्वायर्ड एट द स्टेज एज विच इज अकर्स बाय द एक्सेप्टेड पर्पस और डायरेक्शन ऑफ द टॉक एक्सचेंज इन विच यू आर इंगेज। अब बाय द एक्सेप्टेड पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जी कि ये एक मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें सम प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस्ड एंड देयर सॉल्यूशंस विल बी फाउंड आउट। अब बात उस पे हो रही है, और अगर ये एक्सेप्टेड पर्पस है दैट हियर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू सम सर्टेन प्रॉब्लम्स, और वो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनके हम जो है वो करेंगे, एम्बिगुअस जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अगर आप उनके मुताबिक बोलेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं बोलते तो इट मींस अगेन ये आपका कोऑपरेटिव प्रिंसिपल नहीं है। इसके अंदर जो 4 मैक्सिम्स हैं, द फर्स्ट वन, एंड दीज दे आर टू इजी टू अंडरस्टैंड, द क्वांटिटी मैक्सिम। अब यू नो वेरी वेल क्वांटिटी क्या है। Make your contribution as informative as is required, but not more or less than is required. Bas, if you are required to speak, for example, just one sentence, say just one sentence. No need to say more, no need to say less. And if you are required to speak many sentences to give a very detailed description of something, and you just try to give one sentence or 2 sentences, and then that's all, again ये आप क्वांटिटी मैक्सिम के खिलाफ जो है वो जा रहे हैं। तो जब आपसे ये रिक्वायर किया जाता है बहुत बोलें तो बहुत बोलें, जब आपसे रिक्वायर किया जाता है कि आप कम बोलें तो कम बोलें, और जब ये रिक्वायर किया जाता है कि सिरे से ना बोले तो ना बोले, तो ये आपका क्वांटिटी मैक्सिम है। एंड इट, तो ये आपका कि आपका उस सिचुएशन में रोल क्या है, आप क्या रोल प्ले वहां पे कर रही हैं, ओके, इसके ऊपर होता है। और वहां पे फिर ये सारी आपका आपके लिए जो फॉर्मेलिटी लेवल है वो क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो आपसे रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है उतना बोलें। देन द क्वालिटी मैक्सिम, एंड यू नो क्वालिटी क्या होती है, जो चीजों के स्टैंडर्ड पे होती है, स्टैंडर्ड का बोले, सही बोले। डू नॉट से दैट विच यू बिलीव टू बी फॉल्स और फॉर विच यू लैक एडिक्वेट एविडेंस। क्वालिटी आपकी है, अगर आपको लगता है ना कि जो आप कह रहे हैं खुद आप उसको समझते हैं कि ये गलत है, अब दूसरों के सामने सही पेश कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। उसी चीज को सही करें जिस पे आप बिलीव करते हैं, और उसी चीज को गलत करें जिसके गलत होने पे आपका जो है वो बिलीफ है। डू नॉट से दैट विच यू बिलीव टू बी फॉल्स, जिसके लिए आप खुद गलत समझें और दूसरों के लिए उसके कि ये सही है, नो। और फॉर विच यू लैक एडिक्वेट एविडेंस, समथिंग जिसके यकीन करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको जो है वो ना कहें। फॉर एग्जाम्पल किसी पे समवन हैज बीन चार्ज्ड ऑफ मर्डर, किसी पे कत्ल का इल्जाम लगा है,
If you have a lot of information, simply you can say, he must be the killer. He must be the killer. It means you already have a adequate information and evidence. That is why you are saying he must be the killer. लेकिन if you lack evidence, आपके पास evidence नहीं है, आपके पास proofs नहीं है, and you are reluctant and hesitant in calling him the murderer, तो okay, आप उसमें जो है वो कह सकते हैं, it can be the case he may or may not be the murderer. Now this, it shows that you don't have genuine and justified information. तो सो क्वालिटी ऑफ मैक्सिम आपसे यही कहता है कि आपके पास है वो जस्टिफाइड जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. The fourth one, rather the third one, the relation maxim. So whatever you say, that should be related to the topic of conversation. तो आप रेलिवेंट हो, इररेलेवेंट आप नहीं करेंगे. आपसे बात क्या की जा रही है, एंड वी स्टार्ट बीटिंग अबाउट द बुश, और हम इधर उधर की हाँकने शुरू कर देते हैं. That has nothing to do with the thing that is at hand. That is, आप irrelevant हो जाएंगे. तो ये आप कोऑपरेशन नहीं कर रहे, तो इसलिए आप relevant रहें. Then the manner maxim. So it means that whatever you say, that should be quite clear. That should be free from ambiguity, confusion. उसके अंदर नहीं होनी चाहिए. And what you say, that should be brief. Brevity होनी चाहिए उसमें. बट ब्रेविटी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी. ये नहीं है कि आप इतना ब्रीफ होने की कोशिश करें जिसमें चीजें चाहे वो क्लियर ना हो. सो ब्रेविटी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी. आप ब्रीफ हो, मुख्तसर चीज को बात करें, आप टू वर्डी ना हो, अवॉइड वर्डीनेस, बट से एज मच एज, क्योंकि अगर आप जितना चाहिए उतना नहीं बोलेंगे तो फिर आप मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी को जो है वो वायलेट कर रहे होंगे. अगर ज्यादा बोलेंगे तब भी उसको करेंगे, और इतना बोलेंगे जितना जो है वो है, तो फिर आप मैनर मैक्सिम भी है और क्वांटिटी मैक्सिम को भी फॉलो करेंगे. एंड ऑर्डरली, इट मीन्स कि वट एवर यू आर कंट्रीब्यूटिंग, दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर व्हाट यू आर गोइंग टू से फर्स्ट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू से लास्ट. You should not confuse the order. The things that should be presented first, you are going to discuss them in the last or in the middle or somewhere else. No, ऐसा नहीं. So these are the principles that you are going to follow. These are called the Grayson maxims. यहाँ तक clear है? Students? Yes sir. Yes, Yes sir. sir, it's clear. Okay. इसमें जब हम मैक्सिम में बात करते हैं, ये मैक्सिम हमने कर लिए, इसमें दो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं. एक है फ्लाउटिंग द मैक्सिम्स और एक होता है वॉयलेटिंग द मैक्सिम्स. फ्लाउटिंग द मैक्सिम्स एंड वॉयलेटिंग द मैक्सिम्स. जो फ्लाउटिंग द मैक्सिम है, अब इसका सिंपल सा जो इसके अंदर मेन आइडिया है वो ये है कि जब आप किसी बात को डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट कहते हैं, आप उसको क्लियरली स्टेट नहीं करते, उसको आप सजेस्ट करते हैं. इम्प्लीकेचर आपने डिस्कस किया था, हमने इम्प्लीकेचर याद है आपको? Yes, sir. जी, क्या होता है इम्प्लीकेचर? सर इम्प्लीकेट ये होता है कि जिसमें हम किसी चीज को सजेस्ट करते हैं, इम्प्ली करते हैं, इम्प्लाई करते हैं, मेंटेन, सर इनडायरेक्ट वे में करते हैं, ओपन नहीं करते सर किसी बात को. बिल्कुल ठीक हो गया. अब यही हमारा फ्लोटिंग द मैक्सिम है कि जब आप किसी चीज को डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट कहते हैं, क्लियरली स्टेट नहीं करते, आपका वो एक्सप्लिसिट नहीं होता, इम्प्लिसिट होता है. ठीक है. और आपके दरअसल ये होता है कि जो एक स्पीकर होता है वो ये मतलब चीज को उसे जानबूझ के उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता उसको लिसनर को, लेकिन उसके जहन में ये उम्मीद है कि जो मैं इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा हूं तो ये समझ लेगा. बहुत आप कॉमन सी जो है वो, अगर वही कि अगर आप सर्दियों में जो है वो किसी के घर जो है वो जाते हैं, और इट इज वेरी कॉमन इन ब्रिटेन, बरतानिया में जो है वो ये एक कॉमन है टू से
कि जब वो सर्दियों में इस तरह से किसी के घर जाते हैं और जब वहाँ का जो सिचुएशन है, माहौल है, इन्वायरमेंट है, और उसके मुताबिक नहीं होता, टेम्परेचर उसके मुताबिक नहीं होता, तो कहते हैं डू यू फाइंड इट्स गेटिंग अ बिट चिली इन हियर, डू यू फाइंड इट्स गेटिंग अ बिट चिली इन हियर। अब यहाँ पे सर्दी नहीं लग रही, तुम्हें नहीं महसूस रहा यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी है? अब इसका मतलब क्या है? अब उसको बता तो नहीं रहा ना, उससे पूछ रहा है, अगरचे उसने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज किया है, लेकिन ये डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट के तौर पे है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, आई वॉन्ट टू पुट द फायर ऑन, यार आग ही जला दो, हीटर ऑन कर दो, खिड़की खुली हुई है ये बंद कर दो, इफ पॉसिबल ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी। जी चाय बना दो जी, बट जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी। अब ये फ्लाउटिंग द मैक्सिम है कि जब जो स्पीकर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट करता है हियरर से कि जो हियरर है ही वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द मीनिंग इम्प्लाइड, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इम्प्लाइड। तो हम कहेंगे कि ही इज फ्लाउटिंग द मैक्सिम, ही इज फ्लाउटिंग द मैक्सिम। उसने डायरेक्ट नहीं कहा, उसने इनडायरेक्ट कहा है। दूसरे लफ्ज में अब यूं कह सकते हैं कि जब एक स्पीकर मैक्सिम को फ्लाउट करता है तो स्पीकर ये अस्यूम करता है दैट द हियरर नोज दैट हिज वर्ड्स शुड नॉट बी टेकन एट द फेस वैल्यू। तो स्पीकर को पता है कि ये लिसनर जो है ना, इसे पता है कि ये मेरे वर्ड्स को जो है वो ये एट द फेस वैल्यू नहीं लेगा, इतना पागल नहीं है, ये समझ लेगा कि अगर से मैं यही कह रहा हूँ बहुत बहुत गर्मी है तो ये जाएगा, कोई ठंडा पानी लाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लाएगा, एसी ऑन कर देगा, पंखा ऑन कर देगा, खिड़की खोल देगा। अगर मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो है वो सर्दी है तो वो इसकी चीजें जो है वो उलट हो जाएंगी, या इस तरह से उसे वो ये समझता है कि ये जो है वो उसको फॉलो कर लेगा, मेरी बात को जो है वो कर लेगा, वर्ड्स को फेस वैल्यू पर नहीं लेगा और मेरी जो इम्प्लिसिट मीनिंग है उसको इन्फर कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। तो दैट इज नोन एज फ्लोटिंग द प्रिंसिपल और द मैक्सिम्स। सर ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट वाली बात आ गई ना? जी जी जी, बस उसके लिए हम जब हम इसको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में डिस्कस करते हैं तो इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग द मैक्सिम्स। अब वॉयलेट क्या होता है? सिंपल, जब आप जानबूझ के जो है वो करते हैं कि अगले को समझ ही ना आए, जानबूझ के आप जो है वो उसको करना चाहते हैं, तो ये वॉयलेटिंग द मैक्सिम है। तो जो वॉयलेशन जो है इट टेक्स प्लेस इंटेंशनली, द स्पीकर इंटेंशनली डज सो, या दूसरे हम यूं कह सकते हैं कि व्हेन द स्पीकर नोज दैट द हियरर विल नॉट नो द ट्रूथ एंड विल ओनली अंडरस्टैंड द सरफेस मीनिंग। उसे पता है कि इसकी समझ में नहीं आनी, इसलिए मैं गोलमोल जवाब दे देता हूं ताकि उसको पता ना चले, जवाब भी दे दिया और सही भी नहीं दिया। ये वॉयलेशन है। और इसके अंदर बहुत सारे पीपल टेंड टू टेल लाइज फॉर डिफरेंट रीजंस, झूठ बोलते हैं। अब जवाब तो होता है लेकिन सही नहीं होता, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से झूठ बोलते हैं। दैट मे बी बिकॉज दे वांट टू हाइड द ट्रूथ, दैट मे बी बिकॉज दे फील जेलसी, ठीक है, और दे इट मे बी दैट दे जस्ट वांट टू चीयर द हियरर, उसको खुश करना चाहते हैं, व्हाटएवर। तो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। इसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब जो हमारी वायलेशन है, तो वायलेशन दैट कैन बी द वायलेशन ऑफ द मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, वायलेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, वायलेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ कौन सा था, मैनर, और वायलेशन ऑफ द मैक्सिमम ऑफ कौन सा था चौथा? जी हाँ, रिलेशन। इनमें से जी, इनमें किसी भी मैक्सिमम की वायलेशन हो सकती है, किसी भी एक की आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि जो हमारा पहला था मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, उसकी वायलेशन की एग्जांपल, एक वाइफ है और वो बाजार से कुछ खरीद के लाई है, दैट कैन बी द ड्रेस, उसने फॉर एग्जांपल कि उसने न्यू ड्रेस खरीदा है। अब हस्बैंड उससे कहता है कितने का खरीदा ये, हाउ मच डिड दैट न्यू ड्रेस कॉस्ट, कितनी कीमत है इसकी, हाउ मच डिड दैट न्यू ड्रेस कॉस्ट। अब जो सही है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का ये कहता है कि उसे बता देना चाहिए, मतलब इतने का है। बट द वाइफ जो है वो सेज लेस देन द लास्ट वन, जो पहले खरीदा था ना उससे तो कम के लिया मैंने,
नाउ अब उसने जितना रिक्वायर्ड था वो तो कुछ जवाब नहीं दिया ना, अब उसने वॉयलेट किया जानबूझ के। द वाइफ इनफैक्ट जो है वो शी कवर्स अप द प्राइस ऑफ द ड्रेस बाय नॉट सेइंग हाउ मच, उसने जवाब नहीं दिया सीधा, नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसने अपने हस्बैंड को जब वो नहीं दी, इस तरह से उसने वॉयलेट किया मैक्सिम को। इसी तरह से अगर हम इसी एग्जांपल को देखें दूसरे, हम मैक्सिम पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं क्वालिटी पे, कि वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हस्बैंड करता है, हाउ मच डिड दैट न्यू ड्रेस कॉस्ट। अब इसमें उसने लिया है फॉर एग्जांपल वो 4500 रुपीज का, एंड शी सेज 3500 रुपीज। अब आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, आपको पता है कि ये झूठ है, आपने उसको जितने का आया उतने का नहीं बताया, कम का बताया, तो ये मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी को आपने वॉयलेट कर दिया। इसी तरह से आपका जो मैक्सिमम ऑफ रिलेशन होता है, मैक्सिमम ऑफ रिलेशन क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ रिलेशन क्या होता है? सर जो रेलिवेंट हो। जी, जो रेलिवेंट है। ओके, अब जब हम किसी की तवज्जो हटा के इधर उधर करने की कोशिश करते हैं ना, छोड़ो इसको, ये क्या करना होता है, बस छोड़ो फिर कर लेते हैं उसको ना, तो आप मैनर ऑफ जो मैक्सिमम ऑफ रिलेशन है आप उसको वायलेट करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम लें, हाउ मच डिड दैट न्यू ड्रेस कॉस्ट, और जो वाइफ है आगे से ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट हर हस्बैंड एंड शी ट्राइज टू चेंज द टॉपिक एंड शी सेज ओ लीव इट, let's go tonight for dinner, I have to discuss something important with you, okay, where would you like to go for dinner, and something like that. So she just tried to divert the attention of her husband from the topic that is being discussed. इसी तरह से हमारा मैक्सिमम ऑफ मैनर वो क्या कहता है? दैट इज मैक्सिमम ऑफ मैनर। सर इसके अंदर हम लोग ऑर्डर को देखते हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ होनी चाहिए। और क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एम्बिग्यूटी क्रिएट ना करें। ओके, इसी एग्जांपल को हम लें, हाउ मच डिड दैट न्यू ड्रेस कॉस्ट, और आगे से वो कहती है कि जितना मैं कमाती हूँ ना उसमें तो बहुत थोड़े हिस्से का है। तुझसे पूछा कितने का है, एंड इफ शी इज अ जॉबियन, ओके, एंड शी सिंपल सेज अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ माय सैलरी, जितनी मेरी सैलरी है, जितना मैं कमाती हूँ तो उसमें से कुछ नहीं है, उसका आश्चर्य शीर है ये तो। या वो ये भी कह सकती है कितने का सूट लिया, वो कहती वो जो सेल्स गर्ल थी ना, बस जितनी उसकी तनख्वाह होगी ना उतने का लिया, या जितनी उसकी तनख्वाह है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और कौन सा मैंने बहुत महंगा ले लिया। नाउ शी इज नॉट नाउ एम्बिगुअस, व्हाट मतलब कैसे वो अंडरस्टैंड हो, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज दैट कि मेरी तनख्वाह का जो है वो थोड़ा सा हिस्सा है, जो वो वहां पे काम कर रही है उसकी तनख्वाह से ज्यादा हो सकता है, जो उसकी तनख्वाह जितना हो सकता है, तो सो अगेन शी इज वायलेटिंग, और जानबूझ के जो है वो कर रही है। तो इस तरह तो वो से ये भी कह सकते हैं ना कि 50% ऑफ पे था तो मैंने 50% की बचत कर ली। 50% ऑफ पे था, 50% की बचत कर ली। ओके, सो मतलब कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है जिसमें आप वायलेट कर रहे होंगे एनी मैक्सिम को, तो ये हमारी वायलेशन होती है। Yes, if you people have any question regarding the point we are discussing, the cooperative principle. Hello. यस No सर, question. नथिंग क्वेश्चन। No question as usual. या एज यूजुअल।
Okay. How many of the topics are left in our outline? We have done with the speech act theory. We have done with the felicity conditions. We have done with the conversational implicature. Today, we discuss the cooperative principle along with the conversational maxims. These are the same, which are known as Gaussian maxims. And Daxis we have already discussed. So relevance and politeness. Relevance and politeness. These two are left. ऐसा ही है? The presupposition हो गया. जी Presupposition. जी मैडम, हमने तो उनको किया है सिंटैक्टिक सिमेंटिक्स में कंट्राडिक्शन, एम्बिग्युइटी, semantic anomaly, entailment, presupposition, all the points we have discussed. Yes. सर जी yes सर इसमें वो एक पॉइंट था सर, वो टॉपिक हैजेस वाला सर. हाँ जी, तो क्या हुआ सर उसके बारे में इसमें? तो बता दें. किस में था हेजेस? इसमें लैदा से है कोई? सर वो जो सिंटैक्टिक सर वो सिमेंटिक वाले में था. हाँ जी जी सर वो आपने, मैं भी शायद सर पढ़ाया मैंने पढ़ाया वो उसमें. नहीं, हेजेस किस में था वैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो तो उसको कर तो लेते हैं, लेकिन मैं वैसे ये पूछ रहा हूँ कि हेजेस किस सर में वो था? प्रैग्मेटिक में था सर. नहीं, अगर वो प्रैग्मेटिक्स में उस वक्त था तो फिर हमने डिस्कस भी किया होगा, अगर वो उसके अंदर मौजूद था तो. यस सर मैं भी नहीं किया सुन शायद. वो है किसके अंदर, किस टॉपिक के अंदर है? अगर वो, क्या मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि क्या वो मर्जीनी आउटलाइन का हिस्सा था जिसको हमने छोड़ दिया, ऐसा है? सर वो इम्प्लीकेशन में आता था तो. यस सर इसी के तो हाँ मिलकर जी, चलता था. तो ये सर मुझे वो आउटलाइन का पार्ट तो नहीं है. नहीं, वो उसके अंदर कोई टर्म आई थी, आप ये पूछ रहे हैं कि एक टर्म थी जिसको हमने मतलब वो नहीं किया, तो सिंपल वो कोई बात यस नहीं सर. ऐसे. अच्छा, तो वैसे तो उसके अंदर की जो आपका होता है ना, हेज होता है, जब आप किसी चीज को डायरेक्ट बयान नहीं ना करते, दीज आर कॉल्ड हेजेस. हेजेस जो है वो हम आमतौर पे इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं हेजेस के अंदर हमारे कि जब हम व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, किस चीज के बारे में हमें यकीन नहीं होता, उस चीज को हम डायरेक्ट नहीं करते, हम इनडायरेक्ट वे में जो है वो बयान कर लेते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सर्टन. सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ हेजिटेशन हम उसको इनडायरेक्ट वे में बयान करते हैं. तो ये हमारे जो है वो हेजेस हो सकते, ये हमारे हेजेस होते हैं. जैसे हम कहते हैं समटाइम आप टैग क्वेश्चन हम यूज कर लेते हैं, टैग क्वेश्चन भी यूज कर लेते हैं दैट ही इज प्लेइंग वेरी गुड, इजंट ही. अब चूंकि हमें हमें उसमें कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है हमारे, हम समझ रहे हैं कि वो अच्छा खेल रहा है, तो वो ना खेल रहा हो तो हम वी आर नॉट श्योर, तो हम उस चीज को इस तरह से कर रहे हैं, मॉडरेट वे में बयान कर रहे हैं. ये हमारे जो है वो हेजेस होते हैं. इसी तरह से हम हेजेस को अपने गुफ्तगू के लिए व्हेन वी आर नॉट श्योर तो हम कहते हैं वेल एज यू नो आई थिंक सो फॉर एज माय व्यू इज कंसर्न्ड. अब जब आप इस तरह से कहते हैं कि लैक ऑफ सर्टेनिटी को जो है वो शो करता है आपका, ये सारी चीजें लैक ऑफ सर्टेनिटी को शो करती है, ये हमारे हेजेस होते हैं. ओके सर. यस स्टूडेंट्स, तो अपनी जो है ना वो हम देखते हैं इसको, कल फिर हम पढ़ते हैं. फिर आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, नेक्स्ट स्टार्ट करें? यस सर, इस वीक हम कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस, देन फिर प्रेजेंटेशंस पे शिफ्ट कर देंगे. तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी डाकू किस्म की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए. सर हम लोगों ने तो प्रेजेंट कर दिया था पहले ही.
जी। अब hedges की अगर प्रॉपर डेफिनेशन है वही है जो भी मैंने बताया कि hedges can be defined as words or phrases used to indicate that we are not really sure that we are saying is sufficiently correct or complete. ठीक है, तो सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मैंने कुछ अभी आपको एग्जांपल दी। इसी तरह से हम कहते हैं कि his hair was kind of long। अब सिंपल हम कह सकते हैं ना his hair was long, ये डायरेक्ट है ना एक्सप्रेशन। हम कहते हैं his hair was kind of long, बस ना लंबे तरह के थे जैसे, तो यू आर नॉट श्योर क्या कि वो बाकी लंबे थे कि नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं उसके अंदर। सॉर्ट ऑफ मतलब इट द बुक सीम टू बी अ सॉर्ट ऑफ येलो। अब हालांकि येलो है तो सॉर्ट ऑफ येलो, इट मींस यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट इट इज रियली द येलो कलर, और उसका कोई वेरिएंट हो सकता है। तो इस वजह से तो जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास कंप्लीट है और करेक्ट है, तो फिर हम उसके लिए इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम हेजेस कहते हैं। और उसके अंदर फर्दर वही है, हेजेस के अंदर वही कि एज फॉर ऐसा आई नो, ठीक है, सो फॉर एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर। तो ये चीजें ये शो करती हैं कि आपकी लैक ऑफ सर्टेनिटी है, इनको हम हेजेस कहते हैं। Okay, is it all students? दूसरा ये है कि मॉर्निंग और इवनिंग से अपना हुमा यू आर लिसनिंग, और हुमा इज नॉट देयर, वकार इज लिसनिंग, ओके, एंड देन अरीज इज देयर। अगर अरीज नहीं है तो करम इज देयर। करम शहजाद मौजूद है? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? आर यू लिसनिंग मी? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आप उसमें आपने ये कहना है कि इवन इफ द टॉपिक्स आर रिपीटेड नो प्रॉब्लम। ये नहीं करना कि एक छोटा सा टॉपिक और उसको 4-5 लोगों में जो है वो डिवाइड कर दिया, एंड द पर्सन और द प्रेजेंटर कम्स आफ्टर 2 मिनट्स, ओके जी दैट्स ऑल, मेरा तो इतना हिस्सा था, मेरा इतना हिस्सा था। तो ठीक है, तो इनको हिस्सा थोड़ा सा इनका बड़ा कर देना, शेयर इनका बड़ा कर देना, लॉयंस शेयर जैसे एक इडियम इस्तेमाल होता है, लॉयंस शेयर, ओके। तो बड़ा हिस्सा जो है वो इनको जो है वो आपने करना है। इफ द टॉपिक्स आर रिपीटेड नो प्रॉब्लम, टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 10 मिनट्स की, एटलीस्ट जो है वो 10 या उसके बड़े इतनी प्रेजेंटेशन तो हो, एटलीस्ट 10 मिनट्स। Okay, that's all for today. See you tomorrow, inshallah. Till then, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। Allah Allah Hafiz, sir. Hafiz. Allah Hafiz. अब कार ये तुमने अल्लाह कौन सी हाफिज दहशत सर। गर्दों वाली है ना वो लगाई हुई है आपने? अल्लाह हाफिज। सर वो ना सर मैंने सेल अपना रिस्टोर किया था ना, तो सर वो सारी वो गेम एक ही लग गई, तो सर वो चेंज करनी याद ही नहीं। अच्छा ठीक एंड है। सर मैं आज प्रेजेंट हूँ सर क्लास में। अच्छा जी, नहीं जी बिल्कुल, आप शुरू से मैंने देख लिया था कि वकार मौजूद है, आपकी मेरी शुरू में एक बात हुई थी। थैंक्स फॉर योर कंपनी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। आज हाँ जी, आज करम शहजाद ने लिफ्ट नहीं करवाई। यस सर। सर जी मैं था आपके साथ। हाँ ये भी बात सही है, ये चाहिए तो मैं मतलब जो है ना वो 2 CR की कंपनी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस वजह से जो है वो आप आज फिर एक ठीक हो गया।